Hello everyone, welcome to Abhinya Academy. Today we will discuss some MCQ questions related to our solution chapter. From solution chapter, colligative properties, ideal solution, related to that topics we discuss these questions. Let's start. First question is your a solution containing 10 gram per decimillicube of urea is isotonic with a 5% solution of a non-volatile solute. The molecular mass of this non-volatile solute. क्वेश्चन में क्या पूछा है? दो सॉल्यूशंस हैं. एक में यूरिया एज द सॉल्यूट और एक में एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है. नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट. यूरिया जो प्रेजेंट है एक में वो कितने ग्राम का है? 10 ग्राम पर डेसिमिलीक्यूब. दैट मीन्स 1 ग्राम पर लीटर. मोलिकुलर मास यूरिया का गिवन है 60 ग्राम पर मोल इनवर्स. दिस वन इज आइसोटोनिक with a 5% solution of non-volatile solute. That means 5 gram of solute present in 100 milliliter solution. 5 gram solute present in 100 milliliter solution. क्वेश्चन समझ में आ गया? अभी आंसर निकालेंगे. So what will be the answer? Here isotonic solution. Isotonic solution means osmotic pressure will be remain same. So what will be the answer here? Osmotic pressure of urea solution equal to the osmotic pressure in which unknown solute is present. That unknown solute. So CRT of urea equal to I equal to CRT, osmotic pressure equal to unknown solute. RT and T cancel. Here C is the concentration. Here concentration what will come? 10 per 60. How? Because here given 10 gram per decimillicube. That means 1 gram per liter. मोलिकुलर मास 60 ग्राम मोल इनवर्स दे दिया है, तो यहाँ पे 10/60 इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास. हमें जो निकालना है MB, ये हमें निकालना है, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 300 ग्राम मोल इनवर्स मोलिकुलर मास आएगा. ये इक्वेशन से ये मोलिकुलर मास आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द नॉन जीरो वैल्यू विल बी 4. आइडियल सॉल्यूशन मीन्स विच ओबेस राउल्स लॉ. व्हाट इज राउल्स लॉ? पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन. आइडियल सॉल्यूशन क्या है? जो राउल्स लॉ ओबे करता है. और एक चीज में हम क्या बोल सकते हैं? आइडियल सॉल्यूशन मीन्स इन विच solute for intermolecular force of attraction, solvent intermolecular force of attraction is equal to solvent इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये तीनों का अगर सेम रहेगा दैट इज योर आइडियल सॉल्यूशन. तो यहाँ पे क्या होगा? एंथैल्पी कुछ भी चेंज नहीं होगा. चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू 0. वॉल्यूम कुछ भी चेंज नहीं होगा. चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 0. बट एंट्रोपी विल रिमेन चेंज्ड. नॉन जीरो होगा. ये जीरो नहीं होगा. तो व्हाट विल बी द आंसर हियर? So your answer is del S mix. It is non-zero. Next question. Match the following table. Here some solutions are given.
हमें पता करना है कौन सा क्या सोल्यूशन है। पहले क्या दिया है, सॉलिड इन ए गैस, मतलब सॉलिड इज द सॉल्यूट एंड गैस इज द सॉल्वेंट। व्हाट विल बी द आंसर हियर, ए का क्या होगा 2। व्हाई, स्मोक मीन्स व्हाट, suspended dust particles in the air, that is the solid one, solid in gas. Next, gas in liquid, that is your aerated water. Liquid in solid, C का क्या होगा, amalgams. Amalgams means what, alloy of mercury in one or more metal. मर्क्यूरी कोई भी एक मेटल के साथ अगर रिएक्ट करेगा, मर्क्यूरी क्या है, एक लिक्विड है, ये सब सॉलिड है, तो अगर मर्क्यूरी को सोडियम के साथ करेंगे तो सोडियम अमलगम, अमलगम ऑफ मर्क्यूरी विथ टिन और सिल्वर और जिंक, ये कहां पे यूज होता है, डेंटल फिलिंग, डेंटल फिलिंग. So liquid in solid is your amalgam. Last one is your gas in solid. So what will be the answer here? Hydrogen in palladium. This is very much important. Hydrogen in palladium, that is gas in solid. So which option will be correct here? This one. Colligative properties depend on. Colligative property means what? Total number of solute particles depend upon total number of solute particles divided by total number of solvent particles. So what will be the answer here? Number of solute particles in the solution. Colligative property means the number of solute particles in the solution. It never depend upon the nature of the solvent, physical properties, nature of the solute. ये नेचर के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है. क्या क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है? फर्स्ट वन इज योर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, elevation in boiling point, depression in freezing point, and your osmosis. These are the colligative properties which depend upon the number of the solute particles. Next question. The solubility of a gas in a liquid decrease with an increase in temperature. गैस का एक solubility लिक्विड में, मतलब जैसे एरिएटेड ड्रिंक में, जो कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग पीते हैं, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विड में डिजल्व होके होता है. तो वो जो गैस का सॉल्युबिलिटी है वो कब डिक्रीज कर लेता है, जब विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज दैट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एक्सोथर्मिक प्रोसेस मीन्स हीट विल बी रिलीज हियर, हीट रिलीज हो जाता है. डिसोल्यूशन ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. Next question. An aqueous solution of hydrochloric acid. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का aqueous solution क्या शो करेगा? It will show the negative deviation from Raoult's law. Raoult's law क्या है, पहले ही बता चुकी हूँ. Vapor pressure of a solvent above a solution is equal to the vapor pressure of the pure solvent, vapor pressure of pure solvent into the mole fraction of the solvent present. तो यहाँ पे क्या होता है, अट्रैक्शन बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर, दिस इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इट्स स्ट्रॉन्गर इन टेंडेंसी टू द वेपर प्रेज, सो पार्शियल प्रेशर विल बी स्मॉलर देन प्रेडिक्टेड बाय द राउल्ट्स लॉ. राउल्ट्स लॉ जितना पार्शियल प्रेशर शो करता है उसके हिसाब से ये स्मॉलर वेपर प्रेशर प्रेडिक्ट होता है. तो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ वेपर ओवर एन आइडियल 1:1 मोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन. द करेक्ट स्टेटमेंट इज, बेंजीन एंड टॉलिन का 1:1 मोलर मिक्सचर दिया है.
और क्या गिवन है, बेंजीन का पार्शियल प्रेशर एंड टोल्यूइन का पार्शियल प्रेशर गिवन है। हमें क्या निकालना है, इसका टोटल प्रेशर निकालना है। अगर यहाँ पे 1:1 मोलर दिया है तो काई ए कितना होगा, काई ए कितना होगा, हाफ। काई बी कितना होगा, हाफ। यहाँ पे टोटल प्रेशर अगर हम निकालेंगे राउल्स लॉ डाल के तो पी ए 0 इक्वल टू काई ए प्लस पी बी 0 टू काई बी। सो व्हाट विल बी द आंसर हियर, हाफ इंटू 12.8 प्लस हाफ इंटू 3.85 किलो पास्कल। अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना आंसर मिल रहा है, 8.3। यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर पेज अगर निकालेंगे तो वाई ए कितना आएगा, पी ए सॉल्वेंट इंटू काई ए डिवाइडेड बाय पी। अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ रहा है 0.76। अगर ए का 0.76 आ रहा है तो बी का 1 माइनस 0.76 तो वो कम आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बेंजीन का ज्यादा आ रहा है। ये जो हम निकाले हैं ये बेंजीन का ज्यादा आ रहा है। तो वेपर फेज will contain a higher percentage of benzene. This one will be the answer. 4 number. Next question. The insoluble compound in water is or are. मतलब वाटर में कौन सा insoluble है, phenol, this is soluble in water because it form hydrogen bonding with the water. phenol का फॉर्मूला क्या है, बेंजीन में OH, that is your phenol. Formic acid soluble in water because it is the most polar organic solvent which is soluble in water. But toluene is insoluble in water. टोलिन फ्लोट्स करता है। टोल्यूइन का फॉर्मूला क्या है, बेंजीन रिंग में CH3, दिस इज योर टोलिन। ये पानी में मिलता नहीं है, पानी के ऊपर फ्लोट करता है। तो यहाँ पे ये soluble है बट ये insoluble है। phenol, this is soluble but toluene is insoluble, but here both are insoluble. Toluene is insoluble, it floats over water. Chloroform CHCl3, this is also insoluble in water because यहाँ पे क्या होता है, chloroform is insoluble in water because it does not form hydrogen bonding. हाइड्रोजन कौन कौन फॉर्म करता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अगर ये प्रेजेंट हो तो ही वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, H और Cl के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ ज्यादा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए ये इनसॉल्युबल है। टोल्यूइन एंड क्लोरोफॉर्म बोथ आर इनसॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the maximum amount of a solid solute that can be dissolved in a specific amount of a given liquid solvent does not depend upon, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, the maximum amount of solid solute is the solid particle can be dissolved in a specific amount of liquid solvent, टेम्परेचर के ऊपर तो डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर भी डिपेंड करता है, सॉल्यूट सॉलिड है कि लिक्विड है उसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट प्रेशर के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है बिकॉज चेंज इन प्रेशर डज नॉट इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। क्योंकि क्या होता है, जो कंप्रेसिबिलिटी होता है सॉलिड लिक्विड सब्सटेंस का वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है या फिर वेरी लेस होता है एज कंपेयर टू गैसेस, that's why it does not depend upon the pressure. Next question, a beaker contains a solution of substance A, मतलब ऑलरेडी उस पे A है, precipitation of substance A takes place when small amount of A is added to the solution. बीकर में ऑलरेडी A है, उस फिर भी हम और A
ऐड करने से क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है। तो वो कौन सा सॉल्यूशन है, सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर जो सॉल्यूट ज्यादा है उसको फिर से डालेंगे तो वहां पे प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा। प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है तो दैट इज योर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 1 मोल A pH0 प्योर सॉल्वेंट ऑफ, पार्शियल प्रेशर जो दिया है 150 टर दिया है, एंड 2 मोल ऑफ B दिया है जिसका प्योर सॉल्वेंट पार्शियल प्रेशर 240 टर दिया है। टोटल वेपर प्रेशर कितना दिया है, 200 दिया है, 200 टर दिया है। तो यहाँ पे क्या शो होगा, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, यार आल्सो कुछ शो नहीं करेगा। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, टोटल वेपर प्रेशर जो दिया है 150, अगर हम लेंगे तो 150 इंटू मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, 1 प्लस 2 मोल, 3 मोल टोटल मोल है, तो 1/3 प्लस 240 इंटू 2/3, तो 3 ये 50 आ रहा है, ये 3 160 आ रहा है, तो 50 प्लस 160 210। कैलकुलेटेड कितना आ रहा है 210, बट यहाँ पे कितना दिया है 200 और दिया है, लेस क्वांटिटी में दिया है, तो ये कौन सा वाला शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। राउल्स लॉ का पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन वो कैसे शो करता है मोल फ्रैक्शन में, अगर वो सब के बारे में डिटेल जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू देखते रहिए। आगे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब रिलेटेड और कुछ MCQs भी डिस्कस करेंगे। सो सब्सक्राइब द चैनल टू मोटिवेट मी मोर। थैंक यू।